Assalamu alaikum students. I believe you people are safe and coping with this pandemic situation skillfully and with extra precautions. So let's start our today's lecture of our novel Goodbye Mr. Chips. As I mentioned, it is one of the greatest novel written by James Hilton, and it shows you and it tells you a lot of things that you find amazing and interesting as well. Like it is telling you history, language, era of that time, a personality of Mr. Chips, how Mr. Chips gradually evolves, how his personality evolves with the passage of time after taking a lot of struggle. So you will see how he is telling you his past by recalling all the events, by revisiting the memories. You can also call Mr. Chips is revival of memories, because Mr. Chips is living in his memories, because he is now retired and he has nothing to do. So what he does, he remembers, he recalls each and every uh, event, or even the minute detail of that events. His memory starts when first time he caught cold and doctor told him that he was perfectly ill. I mean, he doesn't have any issue, yet he believes that he is old enough. And it's and of course, as I mentioned in yesterday's lecture, because this old age is something that you put on yourself by your inner self. I mean, अगर आपके पास मोटिवेशन नहीं है, जीने की उमंग नहीं है, तो आप जो है बूढ़ा महसूस करने लगेंगे, इवन दो आप बूढ़े जो है ना वो नहीं होंगे. तो जो मिस्टर चिप्स है वो भी कुछ इसी तरह का एक कैरेक्टर है. उसने खुद पे बुढ़ापा जितारी कर लिया और उसको लगता है कि बस अब वो मर जाएगा. और फिर किस चीज की वजह से उसको ज्यादा फील होता है कि जब वो ये सोचता है कि ओनली ही इज द वन प्रोबेबली हु नोज वेदर बाय, बिकॉज व्हेन वेदर बाय वाज एन ओल्ड मैन व्हेन इट वाज फ्रांस पर्शियन वॉर. तो आपको यहाँ से हिस्ट्री के आइडियाज भी होते हैं इस नॉवल के अंदर. मैंने जैसे कल भी आपको बताया था, यू विल नो अबाउट impacts of world war, psychological and physical, economical, social, every kind of impacts of war on the lives of people living in that era. और आपको इस नॉवल के थ्रू आपको ये भी पता चलेगा. So you can see how in richer literature is that literature tells you about language, culture, or living style, history, science, teaching methodology. So a lot of things come or merge in this single term literature. तो मिस्टर चिप्स को ये लगता है कि वो वाहिद आदमी है जिसे वेदर भाई का पता है, क्योंकि वेदर भाई जो है वो उन दिनों में बूढ़ा था जब फ्रांस और जर्मनी के दरमियान जंग छिड़ी थी. ठीक है. और उन दिनों में उसने जी मेलबरी में मुलाजमत की थी. ही जॉइंड इट बट ही डिडंट लाइक इट, सो ही क्विट. ही लेफ्ट मेलबरी एंड ही मूव टू ब्रोकफील्ड. और उसको ब्रोकफील्ड में सब अच्छा लग रहा था, वहाँ का माहौल भी. और वहाँ उसने देखा कि वहाँ जो है उसके इर्द गिर्द कोई क्रिकेट का खेल हो रहा था, जिसमें जो मुखालिफ टीम का एक खिलाड़ी था उसने सेंचुरी एक बना ली थी. तो बड़ा एक देखिए खुशगवार सा एक सनी सा जुलाई का दिन था और बड़ा खुशगवार एक इवेंट चल रहा था. तो उसे हर चीज बहुत क्लियरली याद थी. ठीक है. अब आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. when he started recalling about Brookfield was a playing Barnhurst, and one of the Barnhurst boys, a chubby little fellow, made a brilliant century. जो ब्रूकफील्ड है वो एक ब्रूकफील्ड में खेल चल रहे थे और वहाँ जो है फूलों की खुशबू महक रही थी. और वहाँ एक छोटे से बच्चे ने, जो उसको देखिए उसको बच्चा बड़ा अच्छे से याद था कि जिसने एक सेंचुरी बना ली थी. Queer that
a thing like that should stay in the memory so clearly. अब वो खुद ही इस चीज पे हैरान होता है कि बड़ी अजीब सी बात है कि उसके जहन में ये मेमोरी अभी भी है. इट मीन्स ही हैज अ स्ट्रॉन्ग मेमोरी. और द अदर थिंग इज ही डजंट वांट टू लीव दैट मेमोरी. ही वांट्स टू लिव इन दैट मेमोरी. वो नहीं चाहता कि वो उस मेमोरी से निकले. वो उसको आज भी वैसे ही इंजॉय करना चाह रहा है. So, whether by himself was very fatherly and courteous, he must have been ill then. Poor chap, for he died during the summer vacations before Chips began his first term. तो देखिए जैसे ही वो अपनी फर्स्ट टर्म का आगाज करने लगता है उससे पहले ही वेदर बाय जो है वो बड़ा उसके साथ एक अच्छा उसका रवैया रहा है, उसकी डेथ हो जाती है. मैं इसीलिए ये चीज बार बार आपको बता रही हूँ क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे कि हाउ ही फेस्ड हार्डशिप्स एंड professional jealousy as well, how he faced criticism from his own colleagues. तो अब एक बंदा जिसने इसको बड़े अच्छे से वेलकम किया है तो वो अब इस दुनिया में नहीं रहा. ठीक है, तो उसके लिए हार्डशिप जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी. अच्छा जी, आगे चलते हैं. चिप्स but the two had seen and spoken to each other anyway. Chips often thought as he sat by the fire at Mrs. Wickett's, I am probably the only man in the world who has vivid recollection of old Weatherby. Vivid. Yes. It was a frequent picture in his mind that summer day with the sunlight filtering through the dust in Weatherby's study. You are a young man, Mr. Chips, and Brookfield is an old foundation. Youth and age often combine well. Give your enthusiasm to Brookfield, and Brookfield will give you something in return. And don't let anyone play tricks with you. I gather the discipline was not always your strong point at Melbury. So now you see Weatherby was telling Mr. Chips how to work because he knows clearly. He knew Mr. Chips was a good person and he also very much aware of the reason that why he left Melbury. तो वो उसको समझाता है कि किस तरीके से उसको रहना है. और जो उसके उसके साथ एक बड़ी जबरदस्त बात उसने की है कि डू नॉट लेट एनीवन प्ले ट्रिक्स विद यू. यानी किसी को अपने साथ मजाक ना करने दो. मजाक इन द सेंस शरारतों से बचे रहो. यानी सम टाइम लोग यही मैंने अभी एक वर्ड आपसे पहले भी शेयर किया है कि प्रोफेशनल जेलसी. डोंट लेट एनीवन मेक योर सेल्फ फूल. यानी दूसरों को बेवकूफ मौका ना दो कि वो तुम्हें बेवकूफ बनाएं या तुम्हें उलझाएं. अक्सर आप देखती होंगी कि आपके इर्द गिर्द भी ऐसे बड़े लोग होते होंगे जो आप तो उस मामले में दूर दूर तक नहीं होती हैं लेकिन वो आपसे कहते हैं कि ये कर लें और जब आप वो कर लेती हैं तो सारा ब्लेम आप पे आ जाता है. आप कहते हैं यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं है. तो ये क्या है? वो ये है कि आप इतनी इनोसेंट है. यू आर सच एन इनोसेंट पर्सन दैट पीपल आर इजीली मेकिंग यू फुल. ठीक है, तो मिस्टर चिप्स को वेदर बाय एक बहुत बड़ी नसीहत. बिकॉज अच्छा ये इसमें ये भी जाहिर करता है कि ही हैड सच अ विजडम दैट ही न्यू एवरीथिंग वेरी क्लियरली. उसको पता था कि जब यहाँ चिप्स ने आना है तो यहाँ चिप्स के साथ ऐसे होना है क्योंकि जो चिप्स है ना वो ही इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैरेक्टर. At the end of this chapter I'll definitely ask you a question, what kind of character Mr. Chips is. आपको कैसा कैरेक्टर लगता है अब तक जितना आप जान रहे हैं. तो हमारे सामने ना उसकी दो बातें साइड बाय साइड पैरेलल रियलिटीज जो चल रही हैं. एक ओल्ड एज है और एक हमारे पास उसकी यंग एज है. एक जब उसके पास बिल्कुल एंड, दो एक्सट्रीम आपके पास चल रही है. वन ही इज about to die because he is very old and he gets cold very easily and he is young energetic. ठीक है, तो दोनों चीजें और दोनों चीजों में हमने तजाद देखना है और फिर आपने फर्क महसूस करना है कि उसने कैसे मूव किया है. ये जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ, दिस नॉवल इज अ स्ट्रगल ऑफ मिस्टर चिप्स. तो वो जो स्ट्रगल उसने अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में की है तो वो आपको इस पूरे नॉवल में नजर आ रही है. और बिल्कुल इसी तरीके से कि कंट्रास्ट मिल रहा है आपको. दोनों साइड बाय साइड रख के आपने इसका एनालिसिस करना है. वेल नो, perhaps not, sir. Never mind. You're full young. It's largely a matter of experience. You have another chance here. Take up a firm attitude from the beginning. That's
the secret of it. No, he is also sharing the secret how to live here, because Chips is not going to accept his offer that he is innocent person or a straightforward person or anyone can make him fool easily. So वेदर भाई उसको बस इतना कहता है कि एक ही एटीट्यूड को जो है ना तुमने यहाँ मेंटेन रखना है और उसी को ही आगे लेकर चलना है, ताकि दूसरों को मौका ना मिले कि वो तुम अच्छा जरूरी नहीं है कि दीज आर ऑलवेज कलीग्स और सबऑर्डिनेट्स, बच्चे भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स. Students are very much naughty most of the time and they make fun of teachers and they um, try to tease teacher by using various acts. और आप इस नॉवल के अंदर देखेंगे कि मिस्टर चिप्स ने किस तरीके से बच्चों को जो है सिखाया और उनको समझाया, उनको पढ़ाया, एंड ही बेयर देम. या सबसे बड़ी चीज जो है उन्होंने उनको बर्दाश्त कैसे किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, लेट्स मूव ऑन. Perhaps it was. He remembered that first tremendous ordeal of taking prep. A September sunset more than half a century ago, a big hall full of lusty barbarians ready to pounce on him as their legitimate prey. His youth, fresh complexioned, high colored, and side whiskered, old fashioned people followed in those days at the mercy of 500 unprincipled ruffians to whom the baiting of new master was a fine art, an exciting sport, and something of a tradition. Now you can see the language first of all. He used a very fine, clear, and pinched language and words to tell you what kind of boys were in his class at the first day. यानी आप पहले दिन ही क्लास में आते हैं और आपको उसने जो वर्ड्स ये यूज किए हैं ना, रफिन, अनप्रिंसिपल्ड, रेडी टू पाउंस, हाई कॉलर्ड, तो ये सारे बिल्कुल उन शैतान लड़कों के लिए ही होते हैं जो कि बस रेडी रहते हैं कि टीचर को कैसे तंग करना है. और उसने बिल्कुल उनका एक नक्शा खींच के आपके आगे रख दिया कि किस तरीके के जो है ना वो थे, लड़के थे. और वो बिल्कुल इसी तरीके से कहता है कि और बड़ी अच्छा आप देखें, ही यूज्ड अ वेरी unique language. James Hilton used a very unique language at one time. The language is very calm and smooth and soft. He is talking about nature, and suddenly he jumped to very pinched, harsh words like ruffins, high colored, or बारबेरियन का मतलब होता है बेटा बहुत जंगजू होना. ठीक है, हम इसके सिनोनिम्स जो है वो हम बाद में तैयार करेंगे अपने लेक्चर के एंड में इंशाल्लाह, कल वाले लेक्चर में. लेकिन कुछ चीजें इन ऑर्डर टू मेक यू क्लियर व्हाट काइंड ऑफ वोकैबुलरी ही इज यूजिंग, आई वांट टू मेक इट इजियर फॉर यू. ठीक है, और जो सबसे मजेदार इसने लाइन यूज की है ना कि लेजिटिमेट प्रे, यानी कि आपका हक होना है, यानी वो उसको इसका हक समझते थे कि वो उसको तंग करे, इसको वो अपना वो समझते थे कि ये एक जो है ना उनका उनका राइट है टू टीज अ टीचर. ठीक हो गया, चले आगे चलते हैं. डिसेंट लिटन बेगर्स इंडिविजुअली. अब वो दूसरी एक जो है ना ग्रोह की बात कर रहे हैं. यानी अब जरूरी नहीं है हर क्लास में जो है शैतान ही लड़के होते हैं, तो अच्छे लड़के भी हो सकते हैं. ठीक है, अब फिर वही दो ऑपोजिट. अच्छा, पूरे नॉवल के अंदर यू विल नोटिस ही इज टॉकिंग अबाउट टू एक्सट्रीम्स. देयर इज नो मॉडरेट और मिडल वे. यानी या तो आपको एक बिल्कुल एक्सट्रीम, यानी कि जवानी की बात करे तो फिर बुढ़ापे की बात करे, शैतान की बात करे तो फिर इंसान की बात करे, फरिश्ते की बात करे, बिल्कुल. तो वो एक्सट्रीम को लेके जो है ना जेम्स हिल्टन चल रहा है. तो वो कहता है कि decent little beggars individually but as a mob, just pitiless and implacable. The sudden hush as he took his place at the desk on the dais. Dais, basically this word is dais, जिसे इसे rostrum भी कहते हैं. ठीक है, अच्छा जी. नॉर्मली हम इसको डाइस पढ़ रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि डाइस जो होता है ना वो छक्के को कहते हैं. ठीक है, कि कोई चीज जो रोल ऑन की जाए. अच्छा जी, कहाँ थे हम? हाँ जी. So he was talking about another mob. The scowl he
assume to cover his inward nervousness. जाहिर सी बात है, देखिए जब वो इस तरह के क्लासरूम में पहली दफा फिर वो पढ़ा रहा है और इस तरह का आगे उसको क्राउड मिल रहा है, तो वो थोड़ा सा नर्वस तो होता ही है. इट हैपेंस. We all are human being. He was also a human, and it happens to you if you feel nervous at the first day of your class. So it happens to your teachers as well. Like we teachers do feel nervous when it is the first time of our class. Why? Because the class and the teacher, they are not familiar with one another. So these things happens when you start. Always you take a start, तो आपके अंदर एक वो थोड़ी सी नर्वसनेस तो होती है, बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू सेकंड्स एंड देन यू ओवरकम इट एंड देन यू स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद योर स्टूडेंट्स एंड यू बिल्ड अ कंफर्ट रिलेशनशिप. तो ये सारी चीजें मैटर कर रही होती हैं. अच्छा, तो द सडन हश एज ही टुक हिज प्लेस. अच्छा, ये हो गई थी लाइन. आगे चलते हैं. हम कहाँ थे? यस. The tall clock ticking behind him, and the smells of ink and varnish, the last blood red rays slanting in slabs through stained glass windows. Someone dropped a desk lid quickly. He must take everyone by surprise. He must show that there was no nonsense about him. अब आप देखिए उसने कैसे नक्शा खींच लिया. हाउ स्किलफुली ही प्रेजेंटेड दैट. इट लुक्स लाइक दैट there is a room where a prey is captured and he is going to be die soon, or he is going to be the victim of all these hungry vultures or growling wolves. ठीक है कि किस तरीके से जो है ना एक आप कह सकते हैं कि आल्टर के अंदर, कुर्बान गाह के अंदर एक वो बकरे को लेकर जाते हैं, उसको ज़िबा कर रहे होते तो कसाइयाँ छुरियाँ तेज किए धारी के साथ खड़े होते हैं. तो बिल्कुल उसने इसी तरीके का नक्शा जो है ना मिस्टर चिप्स के लिए बना लिया था कि इस तरीके से वो जो है ना उनके अंदर ऐसे ही एक खड़ा था और उसको लग रहा था कि बस अब ये जो है ना उसका लास्ट है, और सडनली जो है अब ये शरारत जो है वो शुरू हो गई. यानी कि ये इज जस्ट अ मैटर ऑफ सेकेंड्स. You there in the fifth row, you with the red hair, what's your name? ठीक है. He noticed someone did. Colley, sir. Very well, Colley. You have 100 lines. No trouble at all after that. He had won his first round. अब ये सीन होता है बेटा, when you are in front of your enemy. I would of course I would try to use the same language Hilton has used. तो जब आप अपने मुखालिफ के साथ, when you are standing opposite to the person, you have to keep the upper hand or let him. So what Gibbs did, he used his attitude, he regained his confidence and he punished the student with 100 lines. ठीक है. अब उसने सोचा या तो भाई वो अपना अपना असर दिखाए, आई मीन वो बच्चों के ऊपर एक तासुर सख्त सा छोड़ दे, या फिर वो बच्चों के हाथों मर जाए. ठीक है, यानी सारी जिंदगी बर्दाश्त करे. तो ये वो सिचुएशन थी when he has to take the decision, and he took the decision by punishing that collie boy very skillfully, softly. उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा बस जाओ और 100 लाइंस जो है ना लिखो. And years later, when Colley was an older man of the city of London and baron and various other things, he sent his son, also red-haired, to Brookfield, and Chips would say, Collie, your father was the first boy I ever punished when I came here 25 years ago. He deserved it then, and you deserve it now. How they all laughed, and how Sir Richard laughed when his son wrote him the story in next Sunday's letter. अब देखिए ये कैसी एक मजेदार सी याद उसके लिए बन जाती है कि बाद में जो है ना कॉली जो है वो एक बड़े जो है अच्छा एक बन जाता है. ठीक है, वो एक बड़ा
एक अच्छे एक डेजिग्नेशन उसको मिल जाता है, अच्छे मकाम पे आ जाता है, इवन ही गॉट द टाइटल ऑफ सर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल तो आप सबको ही सर कह रहे होते हैं ना, but at that time this title was very much important when it is bestowed to someone. यानी ये कोई बहुत ही आला मुअज़्ज़िज़ शख्स है जिसको ये टाइटल मिलता है. now you see how Colley became such a gentleman, a successful man, and he also sent his own son to the same school, and his son was also the student of Mr. Chips, and Mr. Chips used to tell the story to Collie and Collie's son, and his son wrote the story to his father every Sunday. तो देखें यहाँ अब आपको सिर्फ एक एक टीचर की शख्सियत, उसकी पर्सनैलिटी का एक वो पहलू नजर आता है जिसके अंदर मजाह भी है, जिसके अंदर तनबीह भी है. बिल्कुल ही इज ऑल्सो पनिशिंग बिकॉज ही इज टेलिंग ही इज द फर्स्ट बॉय आई पनिश. क्योंकि उस वक्त उसने अगर उसको ना पनिश किया होता ना बच्चों, आज मिस्टर चिप्स उन बच्चों के हाथों जलील हो रहा होता. सो वेन एवर यू कंप्लेन द टीचर इज स्ट्रिक्ट, you won't believe only this strict teacher will help you to reach to your goal. क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगी कि हर बहुत ही सख्त होना चाहिए टीचर को. द टीचर शुड यूज अ सरप्राइजिंग एलिमेंट दैट मिस्टर चिप्स कंटेंट, कि उसकी वो कभी हार्श भी हो जाता है, कभी वो सख्त भी हो जाता है, कभी वो मजाक भी कर रहा होता है. तो हमेशा वो एक जैसा रवैया नहीं रखता, और यही बड़ी कामयाबी की बात होती है. तो इस नॉवल के अंदर अब आपको टीचिंग मेथोडोलॉजीज का भी पता चल रहा है कि किस तरह की टीचिंग मेथोडोलॉजीज को जो है ना यूज करना चाहिए. अच्छा जी, हम आगे चलते हैं. And again, years after that, many years after that, there was an even better joke for another Kohli. Had just arrived, son of Kohli, who was a son of first Kohli. Now it's a third generation. And Chips would say, punctuating his remarks with that little that had by then become a habit with him. Kohli, you are it's it's a splendid example of inherited tradition. So it's the third generation he is teaching. I remember your grandfather. He could never grasp the ablative absolute. A stupid fellow, your grandfather, and your father too. I remember him. He used to sit at that far desk by the wall. He wasn't much better either, but I do believe, my dear colleague, that you are um. It's in our expression, but it's um दैट बिगेस्ट फूल ऑफ द लॉट, रोअर्स ऑफ लाफ्टर. तो बच्चे इस चीज को ना बड़ा एंजॉय कर रहे होते थे जब वो थर्ड कॉली को उसके फादर और ग्रैंडफादर की बातें बताता था. और ये बिल्कुल बड़ी मजेदार बात है ना. देखिए, अब जब आपको पता चलता है कि आपके दादा भी यहीं से पढ़ गए हैं, आपके वालिद साहब ने भी यहीं से पढ़ा है, और अब आप भी वहां पढ़ रहे हैं जहाँ आपके दादा बैठा करते थे, और फिर वही एक टीचर से आप पढ़ रहे हो, तो इसके अंदर भी एक अपना ही मजा था. A great joke, this grounding old but a sad joke too, in a way. And as Chip sat by his fire with autumn gales rattling the windows, the waves of humor and sadness uh, swept over him very often until tears fell. So that when Mrs. Wicket came in with his cup of tea, she did not know whether he had been laughing or crying, and neither did Chips himself. तो ये तो हमारा पहला चैप्टर यहाँ खत्म हुआ. लेट्स रिकॉल व्हाट हैपेंड, बट बिफोर इट द लास्ट. अब आप देखिए, बड़ी एक अच्छे तरीके से एक चैप्टर का आगाज होता है, एंड एट द एंड वो दोबारा जो है वो अपनी जो है प्रेजेंट में आ जाता है. फर्स्ट ही वाज मूविंग इन अ पास्ट, ही इज रिकॉलिंग ऑल द मेमोरीज, एंड ही वाज लाफिंग एंड ही वाज एंजॉयिंग, बट सडनली ही रियलाइज्ड इट हैड पास्ट. Now he is living in a present. It's autumn. He is retired. There is no more Collie, no more his son, no more his grandson, no more Mr. Chips there in Brookfield. And then he started feeling sad, and then he
tears fell from his eyes. अगर आप इसको महसूस करें तो कैसा फील होता है कि जिनके साथ आपने एक अरसा गुजारा है, अरसा, और फिर वो लोग आपसे दूर हो जाते हैं, और फिर आप कभी पुरानी यादें देखते हैं, जैसे आप तस्वीरें देखते हैं या कुछ लिखा हुआ देखते हैं, तो फिर आपको वो याद आता है। यू मस्ट आस्क योर पेरेंट्स कि जब वो स्कूल में हुआ करते थे तो उनके दोस्त उनके साथ कैसे मिलते थे, उनके टीचर्स कैसे थे, और फिर आपके पेरेंट्स आपको बताएंगे, वो बातें शेयर करेंगे, तो ऑफ कोर्स उनकी आंखें भी उस वक्त भर आएंगी जब वो ये सारी बातें याद करेंगे। और फिर वो शख्स जिसने 3 नस्लों को पढ़ाया हो, तो उसके लिए ये कैसा मुश्किल टाइम था। तो मिसेस विकेट वॉज वेरी मच कंफ्यूज वेदर ही इज लाफिंग और क्राइंग। ये इसको आप खुशी के आंसू कह सकती हैं कि यार वो जो है खुश भी हो रहा है और उदास भी हो रहा है। खुश इसीलिए हो रहा है कि वो उन यादों को जी रहा है, और उदास इसीलिए हो रहा है कि वो सिर्फ यादें हैं, वो उनको दोबारा नहीं ले। तो ये जो एक अनफुलफिल्ड डिजायर आपके दिलो दिमाग पे छा जाती है, तो ये आपको मजबूर कर देते हैं टू शो स्ट्रॉन्ग इमोशंस। सो लेट्स वाइंड अप दिस पर्टिकुलर लेसन। इसके अंदर, चैप्टर के अंदर हमारे पास वी स्टार्टेड विद द introduction of Mr. Chips, who is living at Mrs. Wickett's, and he is old but not ill, but he has too much. He is deep into his memories and sorrows that he can't come out of it. वो उसमें से निकल नहीं पा रहा है और उन memories को जी रहा है, and he started recalling, he starts recalling all the past events, and he is enjoying. Yet when he realizes the time has passed, now he is living in a present with no more Brookfield, so he feels sad. So this is all about today's lecture. और कोई चीज अगेन आपको समझना है, you can also ask comments in your section when it where it is uploaded, and I'll read your comments, I'll answer you. You can also give us feedback. I mean, if you do not understand anything, you can also share your comments there so that we can make it better, because there is always room for improvisement, and we are improvise ourselves day by day. So your feedback is very much important. Till then, read it and take care.